Hello dear student, good morning and welcome back to lecture number 6 of standard 10 chemistry. Topic is acid, base and salt. Is it clear? In last class, as you know, we had a study about the term basicity. Is it clear? I would like to revise it. What is the meaning of basicity? Basicity means number of replaceable hydrogen present in any acid. When we are talking about basicity, that means we are talking about acid. Is it clear? So now we are coming to the point acidity. Is it clear? See. Next topic is acidity. Is it clear? Do you have idea about acidity? Acidity, when we are talking about the term acidity, that means we are talking about base. Is it clear? हम इसमें बेस की बात करेंगे. किसकी? बेस की. तो आप ध्यान देंगे बेस में क्या होता है? OH ग्रुप. क्या होता है? OH ग्रुप. OH, और इस OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्साइड. अब क्या बोलेंगे? The number of replaceable hydroxide group या OH group. Is it clear? Number of replaceable hydroxide or OH group is known as acidity of that base. Is it clear? किसी बेस से जितना OH ग्रुप को आप रिप्लेस कर सकते हैं उसी को बोलते हैं उसका एसिडिटी. किसी बेस से जितना OH ग्रुप को आप रिप्लेस कर रहे हैं आप क्या बोलते हैं उसको? एसिडिटी. For example, see, this is NaOH. This is sodium hydroxide. अब आप इसमें देखिए, how many OH group is there? Only one OH group. So we can remove how many? Only one, na? So its acidity is equal to 1. Because here we can remove only one OH group from this compound. Is it clear? So its acidity is equal to 1. See, this is first example. See, this is second example. This is calcium hydroxide. This is calcium hydroxide. How many OH group we can remove from this compound? Then easily you can know. This is number of hydroxide group. We can easily remove 2 hydroxide group from this compound. So its acidity will be 2. Is it clear? That means number of replaceable hydroxide group present in any base is defined as what? Acidity. Is it clear? Write down definition. Number of replaceable hydroxide group. हाइड्रोक्साइड आयन भी कह सकते हैं इसको, इसी को बोलते हैं OH माइनस, तो इसको आयन भी बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड ग्रुप फ्रॉम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट इन एनी बेस इज डिफाइंड एज एसिडिटी. इज इट क्लियर? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड ग्रुप, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, कितने को आप हटा सकते हैं. हाइड्रोक्साइड मीन्स OH is defined as what? Acidity. Is it clear? For example, see, this is example number 1, example number 2, this is example number 3. Write down example number 3. This is aluminum hydroxide. आप यहां से कितना को हटा सकते? 3. इसका एसिडिटी कितना होगा? 3. Is it clear? Write down first, then I will explain next the topic. Written? Good. On the basis of acidity, is it clear? On the basis of acidity, base are classified into 3 categories. Is it clear? On the basis of acidity, base are classified into 3 categories. First is monoacidic base, second is diacidic base, and third is triacidic base. Is it clear? Write down. First is monoacidic base, second is
diacidic base, and third is triacidic base. Is it clear? First is monoacidic base, second is diacidic base, and third is triacidic base. Suppose in any base we are able to replace or remove only one OH group, then its acidity will be 1, and that type of base is considered as monoacidic base. Is it clear? मान लो अपने पास कोई बेस दिया है जिसमें से आप एक ही OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हो या रिप्लेस कर सकते हो, क्लियर है? तब उसको आप बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस. इज इट क्लियर? राइट डाउन फर्स्ट मोनो एसिडिक बेस. इफ शॉर्ट में लिख देते हैं, इफ एसिडिटी ऑफ एनी बेस, if acidity of any base is equal to 1, then it is called as monoacidic base. Is it clear? किसी भी बेस का एसिडिटी 1 हो, मतलब उसमें से 1 OH को रिप्लेस कर सकते हैं. कितने OH को रिप्लेस कर सकते हैं? 1. तब आप उसको क्या बोलेंगे? मोनो एसिडिक बेस. अब यहां देखिए जरा सा अच्छे से, मोनो मीन्स 1, ठीक है? अब बेस का मतलब आप जानते हैं OH, ठीक है? और एसिड का मतलब, एसिडिक मतलब एसिडिटी, जिसका एसिडिटी 1 हो, जिसका एसिडिटी 1 हो, आप उस मतलब एसिडिटी मीन्स उससे 1 OH को रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो एसिडिक बेस. एग्जाम्पल अगर देखें तो आप देखिए, अच्छे से समझिए बात को. एग्जाम्पल में आप बताइए ये होगा क्या? NaOH, ठीक है? ये होगा LiOH, ये होगा देखो तो KOH, ये होगा CSOH. ये सब का एसिडिटी कितना है? 1. सो दे ऑल आर. नेक्स्ट टॉपिक इज डाई एसिडिक बेस. समझिए, सी डाई मीन्स 2, बेस मीन्स OH. इज इट क्लियर? और एसिडिटी, ठीक है, जिसमें 2 OH ग्रुप हो, या फिर बोले जिसका एसिडिटी 2 हो, क्लियर है? तब आप उसको क्या बोलेंगे? डाई एसिडिक बेस. इज इट क्लियर? आपको कोई बेस दिया, उसमें से आप 2 OH को रिप्लेस कर पा रहे हैं, क्लियर है? उसी को एसिडिटी बोल रहा है. अगर किसी बेस का एसिडिटी 2 है, तो आप उसको बोलेंगे डाई एसिडिक बेस. इफ एसिडिटी ऑफ एनी बेस इज इक्वल टू 2, then it is considered as what? Diacidic base. Write down definition. If acidity of any base is equal to 2, then it is known as diacidic base. तो आप एग्जाम्पल देखिए, इसको समझिए बात को. जिसका एसिडिटी कितना हो? 2, उसको क्या बोलेंगे? डाइएसिडिक बेस. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए तो CaOH होल 2, इससे कितना OH हटा सकते? 2. इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? एसिडिटी इज इक्वल टू 2, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? डाई एसिडिक बेस. आया बात समझ? किसी भी बेस का एसिडिटी 2 हो जाए, किसी भी बेस का एसिडिटी 2, तब आप उसको बोलते हैं डाई एसिडिक बेस. इज इट क्लियर? राइट डाउन फास्ट. रिटन. नेक्स्ट इज ट्राई
एसिडिक बेस। नेक्स्ट क्या है, एंड लास्ट इज ट्राई एसिडिक बेस। क्लियर है? किसी भी बेस का मतलब OH ग्रुप उसमें हो, OH देता हो, कोई भी ऐसा बेस जिसका एसिडिटी 2 हो, कोई भी ऐसा बेस जिसका एसिडिटी 2 हो, द एसिडिटी ऑफ एनी बेस इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? द एसिडिटी ऑफ एनी बेस इज इक्वल टू 3, देन इट इज कॉल्ड ट्राई एसिडिक बेस। अगर बेस एसिडिटी 2 है तब उसको बोलते हैं डाई एसिडिक बेस। क्लियर है? अब ऐसे ही हम बात करेंगे, कोई भी बेस जिसका एसिडिटी 3 हो, कितना हो 3, तब आप उसको बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस। इज इट क्लियर? राइट डाउन। if the acidity of any base is 3, then it is called as tri-acidic base। किसी भी बेस का एसिडिटी 3 हो, एसिडिटी कितना हो 3, किसी भी बेस का एसिडिटी कितना हो 3, तब आप उसको बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस। इज इट क्लियर? जैसे एग्जांपल देखिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहां से कितना OH हटा सकते 3, तो यहां लिखा है इट्स एसिडिटी इज इक्वल टू 3, तो इसको आप क्या बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस। इज इट क्लियर? इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि इसका एसिडिटी कितना हो 3। ओके, नेक्स्ट टर्म इज अल्कली। समझिए अल्कली है क्या? कोई भी ऐसा बेस, और समझ रहे, बेस होगा तो OH होगा, कोई भी ऐसा बेस जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। इज इट क्लियर? समझिए बात को। द बेस विच इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर is defined as alkali। आई बात समझ में? I repeat, the base which is completely dissolved in water is defined as alkali। कोई भी ऐसा बेस जो वाटर में soluble हो, घुल जाए, आप उसको क्या बोलते हैं अल्कली। क्लियर है? लिख लीजिए, द बेस which is completely dissolve in water is called alkali या alkalis। ओके, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, इसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस। क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस। इज इट क्लियर? वाटर सॉल्युबल बेस। और करके लिख लें, वाटर soluble base is known as alkali। एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट में हो जाएगा NaOH, सेकेंड KOH, थर्ड LiOH, etc। These are the example of alkali। रिटन, राइट डाउन फास्ट। जो वाटर में सॉल्युबल हो उसको अल्कली। ओके, इसमें 2 नोट पॉइंट है, उसको समझिए। जितने भी अल्कली हैं वो सब के सब बेस होंगे, लेकिन सब बेस अल्कली नहीं होंगे। क्लियर है? क्योंकि सब बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते। तो जितने भी अल्कली होंगे वो सब बेस होंगे और सब बेस अल्कली नहीं होंगे। तो इसी को नोट कर लेते हैं, नोट डाउन। ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज। एग्जाम्पल आपको लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। FeOH होल 3 फेरिक हाइड्रोक्साइड,
hydroxide and this is cupric hydroxide are base but not alkalis. ये सब बेस हैं लेकिन अल्कली नहीं है, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड. क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक. ओके, आप एक बार अच्छे से एसिडिटी और बेसिसिटी देखेंगे और इसी को हम लोग पीएच स्केल में नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे. वहां पे आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एसिडिटी और बेसिसिटी का बहुत यूज पड़ेगा, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे. हम भी अगले क्लास में इसको 2-3 एग्जाम्पल और समझाएंगे कि कहाँ से एच हटेगा, कहाँ से ओ एच हटेगा, कौन सा हटेगा, कौन सा नहीं हटेगा, रिप्लेस होगा. थोड़ा है, आप उसको समझेंगे. हम आपको अगले क्लास में पीएच स्केल की ओर ले चलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.